इस वीडियो में हम बायनोमियल थ्योरम और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चन देखेंगे जो एनडीए एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे बायनोमियल क्या होता है। बायनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें दो टर्म होती है जो प्लस या माइनस वाले ऑपरेशन से जुड़ी होती है, जैसे कि a प्लस बी, a माइनस बी, एक्सेट्रा। नाउ व्हाट इज़ बायनोमियल थ्योरम? बायनोमियल थ्योरम इज बेसिकली एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी की पावर n फॉर ऑल a b belonging real number and n belongs to natural number. So in this way expression is given like a plus b की power n, so nc0 a raised to n, b to 0. Similarly here 0 is converted into 1, power of a will be decreased by 1 and power of b will be increased by 1, and similarly it will go on and finally we will get ncn a raised to 0 and b raised to n. For index n there will be n plus 1 term in the expansion, like this is the expansion, there will be n plus 1 terms in the expansion. Here are given some expansions by this binomial theorem, like x plus 1 raised to power n is given by this, x minus 1 power n given by this, 1 plus x power n is given by this, and 1 minus x the power given by this. These are some important expressions. इसके बाद we will find number of terms in expansion, like एक expansion में कितनी terms दी हुई हैं, कितनी टर्म्स हैं, उन सब के बारे में अपन कैसे जानेंगे। तो सबसे पहले इफ़ द एक्सपेंशन हैज़ गिवन द फॉर्म a प्लस बी रेज टू पावर n, जैसा कि अभी पहले बताया मैंने, जिसकी भी फॉर्म a प्लस बी रेज टू पावर n होगी उसमें n प्लस 1 टर्म होंगी। दूसरा, जो एक्सपेंशन की फॉर्म a प्लस बी रेज टू पावर n प्लस ब्रैकेट a माइनस बी रेज टू पावर n है, तो उसमें इफ़ n इज़ इवन then number of term will be n by 2 plus 1 in the expansion. If n is odd then number of terms will be n plus 1 by 2. Here are some examples. First example, 1 plus x raised to power 10 plus 1 minus x raised to power 10. इसमें 10 by 2 plus 1 it means 6 terms होंगी. Similarly इसमें 5 terms होंगी. Now example third, ये NDA 2019 में पूछा हुआ है, like 2x minus 3y square into 2x plus 3y square whole raised to square. Now we are getting this is into multiply, so we will take square in common and square is also outside it. Now we will apply the identity a plus b, a minus b, which is equal to a square minus b square. So applying this we will get this. Now it is again the form a plus b raised to power n, which has n plus 1 terms. So here our power is 4, so number of terms will be 5. So the third type is expansion of the form a plus b raised to power n minus a minus b raised to power n. Similarly, n by 2 terms will be there if n is even, n plus 1 by 2 if n is odd. Here is example, 4x plus 2y raised to power 4 minus 4x minus 2y raised to power 4 has 2 terms because 4 is even and 4 by 2 equal to 2. Here is ए स्पेशल टाइप, अगर हमें 3 वेरिएबल में कोई एक्सपेंशन करनी हो, तो जैसे ये एक्सपेंशन है तो इसको अपन सोल्व करेंगे। नॉर्मली 2 टर्म बनाएंगे जैसे a प्लस बी की फॉर्म में, तो इन 2 टर्म को हमने एक ही टर्म मान ली, तो अब इसको एक्सपेंड करेंगे nc0 xn, जैसे कि बायनोमियल को एक्सपेंड करते हैं nc0 x रेज टू n प्लस nc1 x रेज टू n माइनस 1, इस बार इसकी पावर 1 हो जाएगी। ऐसे सिमिलरली इसको एक्सपेंड करते रहेंगे। तो अपन देखेंगे सबसे पहले इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है तो एक टर्म, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है और 2 वेरिएबल तो 2 टर्म। सिमिलरली स्क्वायर है, देयर विल बी 3 टर्म्स इंक्लूडिंग जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड जेड वाई, एंड एक्स रेज टू पावर n माइनस 2 will also be multiplied by it, so there will be 3 terms. Consequently we will getting n plus 1 terms because the expansion which is having power n will be having n plus 1 terms, and each expansion is having increasing number of terms like 1, 2, 3, and now we will add all the number of terms, and we know that sum of first n natural numbers 1 plus 2 plus 3n is given by n into n plus 1 by 2. So here we are finding sum of first n plus 1 natural number, so the sum is given by n plus 1 n plus 2 by 2. So these are the total number of terms. अब हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है जो NDA 2019 में पूछा गया है, like 1 plus 2x plus x square raised to power 5 plus 1 plus 2y plus 2y square raised to power 5. इसमें टोटल टर्म्स कितनी है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें
सारे सेम वेरिएबल है, इसमें भी सेम वेरिएबल है। अगर हम इसमें जितनी टर्म्स है वो निकालें तो उनका डबल कर देंगे तो हमारे पास टोटल टर्म्स आ जाएंगी। तो सबसे पहले अपन 1 + 2x + x² रेज़ टू पावर 5 को लेके चलेंगे। तो इसका एक्सपेंड कैसे करेंगे, 1 प्लस, जैसे पहले क्या था 1 प्लस, इसको एक सिंगल टर्म मान लेंगे 2x + x² 5, इसका रेज़ टू पावर 5 एक्सपेंड करेंगे। तो उनको सोल्व करने के बाद हमें जो भी टर्म मिलेंगी, लेकिन वो कुछ इस फॉर्म में मिलेंगे कि x की पावर मैक्स टू मैक्स कितनी हो सकती है, 10। और जब इसको पूरा सोल्व करेंगे तो x की पावर 10 तक आएगी। तो टर्म्स हमारे पास 1, x की पावर 1, x² और x की 10 तक, इनका कुछ कोफिशिएंट होगा और उन सब का सम होगा जो हमारे पास टोटल टर्म्स मिलेंगी। तो हमारे पास बेसिकली टोटल टर्म्स कितनी आएंगी, 11, क्योंकि x की पावर 1 से x की पावर 10 तो 10 टर्म और एक ये कॉन्स्टेंट 11। तो हमारे पास टोटल टर्म्स कितनी आएंगी, 11। कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है लेकिन टोटल टर्म्स 11 आएंगे क्योंकि वेरिएबल सेम है। कुछ भी मल्टीप्लाई वगैरह होके वो पावर्स 1 to 10 के अंदर ही इंक्लूड होगा। सिमिलरली यहाँ पे y वाला दिया हुआ है तो उसके भी टोटल टर्म्स कितनी होंगी, 11। लेकिन हमें पता है इसमें एक वेरिएबल कांस्टेंट है, इसमें भी एक कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट ऐड होंगे तो फिर एक और कांस्टेंट बनेगा। तो इसका मतलब टोटल टर्म्स कितनी होंगी एक्सपेंशन में, 11 + 11 - 1। सो टोटल टर्म्स आर 21। दिस इज आंसर। इसके बाद बाइनोमियल थ्योरम, हमें पता है a + b की पावर n को एक्सपेंशन है, तो हम इसको समेशन के तौर पे भी लिख सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि इसको अगर अपन खोलेंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा, NC0 a⁻n b⁻0 + NC1 a⁻n - 1 b⁻1 सिमिलरली गो ऑन प्लस NCn a⁻0 b⁻n, इसी तरीके से बनेगा। तो नाउ वी विल सी द फॉर्मूला फॉर जनरल टर्म इन बाइनोमियल एक्सप्रेशन। सो जनरल term formula is given by TR + 1, like we are finding R + 1th term which is given by NCR a n - r b⁻r. Like if there is R + 1 na, so there will be R only. So and now what will be the middle term of an expansion like a + b⁻n, then middle term will be given by Tn/2 + 1 if n is even, and there will be two middle term if n is odd, which are given by Tn + 1/2 and Tn + 1/2 + 1. So here is a question which was asked in NDA 2019. like हमें एक मिडल टर्म दी हुई है, एक एक्सपेंशन x² + 1/x⁻²n की, जो कि है 184,756 x⁻10. सो सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 पावर इज 2⁻n, which means which is even. So the middle term will be given by T2n/2 + 1. So this is the middle term. तो ये जो हमारे पास एक्सपेंशन दी हुई है इसकी मिडल टर्म अपन फॉर्मूले से निकालेंगे तो ये आएगी 2nCn फर्स्ट टर्म x² की पावर n, नोट 2n 1/x की पावर n. ओके, so this is the middle term by formula and this is middle term we are given. तो सबसे पहले we will find the value of n by comparing the power of x. तो from this side we will get x⁻²n/x की n equal to x⁻10. So after solving this we will find n equal to 10. So this is the value of n. Now next question which was asked in NDA 2019, like we are given a constant term in the expansion and expansion is √x - k/x² पावर 10 is 405. तो हमें गिवन है कि कांस्टेंट टर्म 405 है, तो हमें वैल्यू ऑफ k फाइंड करनी है। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म I.T, सबसे पहले हमें जर्नल टर्म निकालनी होगी, और जर्नल टर्म में कांस्टेंट टर्म कौन सी होगी जिसमें पावर ऑफ x इज 0, I.T x⁻0 वो होगी कांस्टेंट टर्म। सबसे पहले जर्नल टर्म का फॉर्मूला TR + 1, n की जगह हमारे पास 10 दिया हुआ है तो 10CR, फर्स्ट टर्म √x पावर r माइनस सेकेंड टर्म -k/x², 10 - r. First of all we will take only terms of x for finding value of r. तो इसका मतलब सबसे पहले अपन x की पावर्स लेंगे ताकि हम r का मान निकाल सकें। कांस्टेंट टर्म में x की पावर्स 0 के इक्वल रखी जाएंगी, तो हमने उस फॉर्मूले से
एक्स की पावर्स वाली टर्म्स एक तरफ कर ली और इक्वल टू एक्स रेज टू 0 रख दिया। तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास आएगा आर का मान 8। तो इसका मतलब T9 जो नाइन्थ टर्म है वो हमारी कांस्टेंट टर्म है और जिसमें उसका वैल्यू 405 हमें दिया हुआ है। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन द इक्वेशन लाइक 10C8 रूट एक्स की पावर 8 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्र 10 माइनस 8 इक्वल टू 405। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल फाइंड k is equal to root 9 which is equal to plus minus 3. So the value of k is plus minus 3. धन्यवाद।